व्हाट्सअप वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स क्वेरीज। सो आज के इस वीडियो में नीट 2026 बेसिकली री नीट 2026 के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चंस जो आया है, an ideal gas is made up of polyatomic molecules. Each of the molecules has 3 translational, 3 rotational and f number of vibrational modes. If the ratio of heat capacity is Cp by Cv of the gas is 8 by 7, so what is given? Cp by Cv, which is equals to 8 by 7, and you know Cp by Cv is equals to gamma. ठीक है. So then the value of F is, so what will be the degree of freedom? In this case, degree of freedom will be, here it is given 3 translational degrees of freedom plus 3 rotational degrees of freedom plus f vibrational modes, f number of vibrational modes. The concept is, for one vibrational mode there is 2 degree of freedom. For one vibrational mode, आपको पता होना चाहिए, for one vibrational mode there is 2 degree of freedom. There is 2 degree of freedom, DOF, degree of freedom. So the total degree of freedom in this case will be 3 translational, 3 rotational and f number of vibrational mode के लिए 2 times f. So degree of freedom will be 6 plus 2f. So आप जानते हो एक फॉर्मूला, you have to find the value of f. We know गामा इज गिवन 8 by 7, तो गामा के एक फॉर्मूला है, गामा इज इक्वल्स टू 1 plus 2 by f. f मीन्स यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, f इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो 2 by डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देता हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूज. सो गामा इज 8 by 7, 1 plus 2 by degree of freedom is 6 plus 2f. Just solve it to get the answer. 8 by 7 is equals to 6 plus 2f plus 2 divided by LCM 6 plus 2f. So if you solve it, that will be 8 plus 2f divided by 6 plus 2f. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा ना, 48 plus 16f is equals to 56 plus 12f. That is implies 2f is equals to 56 minus 48, which is equals to 8. That implies f is equals to 4. So in this case the correct answer is 4. So next, move to the next question. Next question basically comes from the experimental part. So it is given that 1 main scale division of a Vernier caliper is equal to 1 mm. 1 main scale division is 1 mm and the number of divisions on the Vernier scale is 10. Number of division in Vernier scale is 10. इस टाइप का स्केल का लिस्ट काउंट जो कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन करके निकालते हैं, आपने पहले से किया होगा, बहुत इजी है. दैट विल बी सिंपली 0.1 mm और विच इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर. वी कैन कैलकुलेट दिस इज वेरी बेसिक थिंग. तो लिस्ट काउंट ऑफ दिस गिवन स्केल विल बी 0.01 सेंटीमीटर. अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बोथ द जज टच ईच अदर द वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट टू द जीरो. तो वर्नियर स्केल शिफ्ट लेफ्ट ऑफ जीरो of main scale. It means here it is negative zero error. So what will be the negative zero error? You can calculate negative zero error. अगर जीरो बर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है तो नेगेटिव जीरो एरर आता है. सो दिस नेगेटिव जीरो एरर विल बी
हाउ मच दैट विल बी, किसके साथ मैच कर रहा है, इन सच ए वे दैट फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो n इंटू एल सी करते हो, दैट इज कोइंसाइडिंग विथ 4 इंटू एल सी इज योर 0.01, so this will be 0.04 centimeter. So again, question is, if this vernier caliper measures the length of a wire to be 1 centimeter, the actual length of the wire, so actual length will be measured length minus zero error, मतलब जो जीरो एरर आता है उसको मेजर्ड लेंथ से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो जीरो एरर को मेजर्ड लेंथ से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, that will be measured length is your 1 centimeter and zero error कितना आया, that is 0.04 and which is equals to 0.96 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 0.96 सेंटीमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.96 सेंटीमीटर। अच्छा, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली आज ही एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप डिस्कशन कर लो, पूरा डिटेल क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड्स D1, D2, D3 आर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी आज शोन इन द फिगर। सो दिस इज D1, दिस इज D2 and D3. So you can say in this case, if the width of depletion region of D1, D2 and D3 are W1, W2, W3, so डायोड D1 की width दे रखा है W1, D2 की width दे रखा है W2, D3 की width of depletion region दे रखा है W3. तो which of the following is correct? So when this is connected to the 5 volt supply, you can clearly see D1 is forward biased. फॉरवर्ड बायस कब होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी is connected to P side and negative terminal of battery is connected to N side. तो इस केस में आप बोलते हो कि ये फॉरवर्ड बायस की केस है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू N साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P साइड, देन इट इज रिवर्स बायस। तो भाई डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, तो इस केस में जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। सो D2 की बात करें, सो D2 यहाँ पे ओपन सर्किट है, D2 इज ऑन बाइस्ड, D2 इज ऑन बाइस्ड एंड D3 यू कैन सी ये रिवर्स बाइस है, D3 इज रिवर्स बाइस। सो विड्थ इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इस केस में इंक्रीजेस। तो इस केस में सबसे ज़्यादा विड्थ डिप्लेशन रीजन का किसका होगा, D3 के केस में, डायोड D3 के। तो दैट मीन्स W3 ग्रेटर देन द अनबाइस्ड वन, W2 ग्रेटर देन द फॉरवर्ड बायस वन। सो D1 के केस में जो विड्थ W1 है ये सबसे कम है, तो ऑप्शन से देखो W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that consider a spring mass simple harmonic oscillator in one dimension. The mass of the particle is m kg and the spring constant k Newton per meter. At a given instant, the extension of the spring is x meter and the speed of the particle is v meter per second. On the xv plane, if the graph v as a function of x is a circle, then the correct option is। अच्छा, तो k और m के बीच में कौन सी करेक्ट रिलेशन होगा। सो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स भी प्लेन जो है
वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स भी प्लेन में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए, एक्स भी प्लेन पे लाने के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जो एस एच एम कर रहा है, स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी को आप E इज इक्वल्स टू लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर बाई ई प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बाई ई इज इक्वल्स टू 1। तो जस्ट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो यू कैन राइट v और x के बीच में लाना है, तो v स्क्वायर बाई 2e बाई m, जस्ट अरेंजिंग इट, सो x स्क्वायर बाई 2e बाई k इज इक्वल्स टू 1। सो व्हेन इट विल बी ए इक्वेशन ऑफ सर्कल, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल only when these two terms equal। so 2e, उसके लिए 2e by m must be equals to 2e by k। so 2e दोनों साइड से कैंसिल कर जाएगा, तो m must be equals to k। तो m और k बराबर होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? m must be equals to k। so let's go to the next question। it is from the electromagnetic wave। Question says an electromagnetic wave traveling in a lossless dielectric medium having a dielectric constant epsilon r is equals to 9 has the electric field Ex is represented by the equation E naught sin kz minus 2 pi into 10 to the power 6t। बेटा इस इक्वेशन को देखते ही आप क्या समझ सकते हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन पे है। वेव जो वेव प्रोपागेट्स, कहाँ प्रोपागेट कर रहा है? वेव किस डायरेक्शन पे प्रोपागेट कर रहा है ना? वेव प्रोपागेट इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इस इक्वेशन से अगर एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव होता है तो इस केस में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पे वेव प्रोपागेट कर रहा है। इसको देखते हुए डाटा, इस इक्वेशन से और क्या डाटा ले सकते हो? जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू आ रहा है 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6। अच्छा, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस क्या होता है? सी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in space or vacuum is c, but in any medium which is represented by 1 by root under mu naught epsilon naught। so speed of electromagnetic wave in any medium, that will be v is equals to 1 by refractive v is equals to 1 by permeability of that medium times permittivity of that medium under root permeability and permittivity of that medium। so we can write, as we know mu r is equals to mu upon mu naught, we can write mu is equals to mu r mu naught, and epsilon r equals to epsilon naught। that implies epsilon will be epsilon or epsilon naught। so if we replace mu and epsilon, you will get v is equals to 1 upon mu r mu naught epsilon r epsilon naught का अंडर रूट। सो 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बदले c लिख सकते हो, c बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो इस क्वेश्चन में बेटा एप्सिलॉन नॉट आर गिवन है, तो वी कैन एज्यूम दिस इज नॉन मैग्नेटिक मीडियम। सो म्यू आर की वैल्यू 1, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे
9. So you'll get V will be C by 1 into 9 का root over, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by you will get 9 का root over 3. So 3 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड इन दैट मीडियम विल बी 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो इसमें से कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है वो आपको देखना है. अगर फास्ट ऑप्शन की चेक करेंगे, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 300 मीटर. सो लेट्स कैलकुलेट वेवलेंथ. सो हाउ कैन कैलकुलेट वेवलेंथ, हाउ कैन वी कैलकुलेट वेवलेंथ? सो यू नो v is equals to f lambda. So you'll get lambda is equals to v by f, and v you'll get 10 to the power 8. f कितना है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ. तो इसको कंपेयर करोगे तो f की वैल्यू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा. सो f की वैल्यू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा. सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 या फिर 100 मीटर. सो वेवलेंथ 100 मीटर होना चाहिए, लेकिन वेवलेंथ 300 मीटर दे रखा है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. बाकी भी चेक कर लेते हैं. द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन. तो स्टार्टिंग से वेव की इक्वेशन देख के ही हम बता दिए थे. उसके बाद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये भी हमने पहले से कैलकुलेट कर दिया. उसके बाद ये वाली अगर लिख के दिखाएंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन इज गिवन बाय द रिलेशन. अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन पे होगा? पहली बात तो वेव प्रोपागेट हो रहा है जेड डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन पे, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन पे होगा. तो बी वाई इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या ना भाई? बी नॉट बाई भी क्या हो जाएगा ना? बी नॉट बाई वी, बी नॉट बाई वी इंटू साइन, जो इक्वेशन था बाकी वही लिख देना, के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60. ये होगा क्योंकि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बी वाई का वैल्यू जो होगा दैट विल बी बी नॉट बाई वी होगा. ठीक है, बी नॉट बाई वी होगा. ओके, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन लिए हैं. अगले वीडियो में फिर ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन करके पूरे रीनीट 2026 के सारे क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.